Hello kids, welcome back. Welcome back to your class. And kids, yesterday we have started word processing. कल हम word processing पढ़ना शुरू किए and today we will first of all I will explain you these things with the help of okay. So first of all I will explain you this thing with the help of slide. ये Microsoft Word की एक PPT है जिसकी help से I will explain you the things. Okay, so yesterday we have started studying about Microsoft Word और हमने देखा कि what are the word processor अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके अलग अलग functions होते हैं. तो today we will start word processor. I mean Microsoft Word. Now, Microsoft Word is the word processing component. What is Microsoft Word? Microsoft Word is a word processing component of the Microsoft Office suite. Microsoft Office का एक component होता है Microsoft Word. Okay, Microsoft Office का एक component होता है Microsoft Word. It is used primarily to enter, edit, format, save, रिट्राइव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का देखो हमें कौन सा वर्ड प्रोसेसर पढ़ना है. वी हैव टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, व्हाट इज द क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन व्हाट वी कैन डू. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन एडिट, फॉर्मेट. See what can we do? We can edit, we can format, and we can save and retrieve and print document. We can print our document. So this much of things we can do here in the Microsoft Word. है ना. Okay, now what are the other thing that we can do with this program? What are the other thing that we can do with Microsoft Words? So we can cut, copy and paste our text. We can cut, copy and paste our text from the one place to other. We can cut, copy and paste our text from one place to other. एक जगह से दूसरी जगह हम उसमें जा सकते हैं, टेक्स्ट को ले जा सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्क विद द बटन्स ऑन द टूल बार. टूल बार पे जितने बटन्स होते हैं उन पे हम काम कर सकते हैं. वर्क विद द पॉइंटर एंड वर्क विद टेक्स्ट एंड करेक्टर इन अ प्रोग्राम. वी कैन ऑल्सो वर्क विद टेक्स्ट एंड करेक्टर ऑफ अ प्रोग्राम. Also we can work with pictures. We can work with picture. And we can work with language tool. Language tool कौन सी होती है उसमें, that we will read in our chapter. That MS Word में there are different type of language tool like spell check, dictionary, thesaurus. These all are the different type of language tool. Identify the various benefit of using the Word program software. We can identify the various benefit of the using the Word program software. Okay, now what is the next thing? Let us move ahead with the slide. Okay, screen component. See, this is what screen component, the opening screen of Microsoft Word 2010. अब हमारे सामने क्या आने वाला है, स्क्रीन कंपोनेंट. हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन कंपोनेंट है वो कैसा दिखता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सी कुछ इस तरह का होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन कंपोनेंट. क्या क्या चीजें होती हैं, वी आर हैविंग फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू. तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्रीन कंपोनेंट ऑफ अवर एमएस वर्ड. एमएस वर्ड 2010 का ये क्या होता है. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क एरिया. दिस इज व्हाट, ये क्या है बेटा, ये एक वर्क एरिया. ये जो ब्लैंक स्पेस हमें दिखती है
ये क्या होती है, ये होती है हमारी, ये है हमारी वर्क एरिया। ओके, दिस इज वर्क एरिया। और ऊपर ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर द डिफरेंट रिबन्स, डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट टूल्स with the help of which we can use MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम जितना ब्यूटिफाई कर सकते हैं, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ that we can do with the help of these tools, like we can bold our text, we can italic them, we can underline them. Okay, let us move ahead with the slide. Now terminology, what are the different terminology? Now while different version have different appearance, just okay, first let me read. So what happened ki like different version of MS Word have different terminology and different appearance, they all have most of the same feature. होता क्या है MS Word में, जैसे हम लोग 2010 यूज कर रहे हैं, है ना, वी आर यूजिंग MS 2010 यूज कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है, अपीयरेंस बदल गया। अपीयरेंस मतलब जैसा MS Word 2008 या 2000 या विंडो विस्टा में दिखता था, अब वैसा नहीं दिखता है। अब वो वैसा नहीं दिखता है। What happened? Now it doesn't seems like that. What happened? They all have most of the same features. They all have most of the same feature. Okay, so I was telling you that different version of MS Word have different terminology. अलग अलग terminology होती है। टर्मिनोलॉजी में जैसे डिफरेंट अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस मीन्स व्हाट, अब जैसे आपके सामने जो ये स्क्रीन है, पहले क्या था, विंडो विस्टा या विंडो 8 में ये इस तरह की नहीं थी, उसमें इस तरह के रिबन्स नहीं हुआ करते थे या इतने ज्यादा फीचर्स नहीं हुआ करते थे। बट अब विंडोज 10 में वी आर गेटिंग ऑल दीज फीचर्स नाउ। अच्छा देखो, अब ये जो आपके ऊपर यहाँ पे जो व्हाट इज हियर, यहाँ पे जो आपका एक रेड आउटलाइन है, द एरिया, सी द एरिया outline in red is called the title bar. Here they are explaining each and every terms. यहाँ पे क्या वो समझा रहे हैं, एक एक टर्म्स को वो समझा रहे हैं। सो द एरिया आउटलाइन इन रेड इज कॉल्ड द टाइटल बार। उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट टाइटल बार। It displays the names of the open program, in this case Microsoft Word, and the name of the current file. यहाँ पे क्या है, देखो डॉक्यूमेंट 1 क्या है, डॉक्यूमेंट 1 इज द नेम ऑफ द करेंट फाइल। ये जो करेंट फाइल यहाँ पे सामने खुली है, दिस इज डॉक्यूमेंट 1। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज व्हाट, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नेम ऑफ द प्रोग्राम। वो क्या है, नेम ऑफ द प्रोग्राम है। ओके, लेट अस मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट, टाइटल बार। सबसे टॉप में सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। ओके, नाउ मूविंग अहेड। Now here what they are saying, that this file has not yet been saved, so it is named is, so its name is document. अभी तक इस फाइल को हमने सेव नहीं किया। अभी तक देखो इसका नाम क्या शो हो रहा है, अभी तक इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 ही शो हो रहा है। वाई रीजन, बिकॉज हमने अभी तक इसको क्या नहीं किया है, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया है। जब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, we will get its name. File created in Microsoft Word are often referred to as the documents and have the file extension. File extension क्या होता है, .doc या .dox, .doc या .dox क्या होता है, इनका फाइल का एक्सटेंशन।
So now after reading things that we can do with the word processor, next point is types of word processor. Next is types of word processor. Now here there are few types of word processor that has been given, and we have to see what work we can do with them. Okay, so first is माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे पहला और सबसे कॉमन वर्ड प्रोसेसर हम यूज करते हैं वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ पावरफुल word processor created by Microsoft for Macintosh and Windows based computer। So पावर, ये क्या है? ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है जो किसने क्रिएट किया? इट इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर मैकेंटॉश विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। मैकेंटॉश एंड विंडोज बेस्ड कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, अब जैसे हम भी इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ओनली, है ना? वी आर ऑल्सो गोइंग टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज ClarisWorks. Next is ClarisWorks, a full-featured word processor package created by Claris for Macintosh and Windows based computer। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है फॉर मैकेंटॉश एंड विंडोज, सिमिलरली क्लैरिसवर्क्स भी क्या है? क्लैरिसवर्क्स भी क्या है? क्लैरिसवर्क्स इज ऑल्सो देयर फॉर मैकेंटॉश एंड विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्क। अच्छा, अब अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्क। माइक्रोसॉफ्ट वर्क, a full featured word processor package created by Microsoft for Macintosh Windows based computer। Macintosh and Windows based computer, है ना? Okay, now the next we are having Lotus Word Pro। Next we are having Lotus Word Pro. It is a word processor software produced by IBM। IBM के द्वारा, IBM ने इसको बनाया क्या? IBM ने क्या बनाया? Lotus Word Pro। Now Word Pro can be obtained as a part of Lotus Smart Office Suite। Next one is Word Perfect। अगला क्या है? अगला है हमारा Word Perfect। Next is Word Perfect. Now Word Perfect, it is proprietary word processing application at the height of its popularity in the late 1980-1990s। तो बिफोर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैकेंटॉश के आने के पहले वर्ड परफेक्ट क्या था? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। It was the de facto standard word processor but has been eclipsed in sales by Microsoft Word। लेकिन हुआ क्या, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया तो उसके बाद इसकी इसकी पॉपुलैरिटी क्या हो गई? धीरे धीरे स्लो डाउन होती गई। नाउ नेक्स्ट इज एडोब इन कॉपी। अगला क्या है? एडोब इन कॉपी। ओके, Adobe InCopy, it is professional word processing software product made by Adobe System. It is tightly integrated with the Adobe InDesign and its most recent version, Adobe InCopy CS3। Adobe InCopy CS3 is the most recent version of this software। most recent। अच्छा देखो, one thing that I would like to tell you that ये सारी चीजें क्या है? These all are the word processors। ये सारे क्या है? word processors है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइटर। अगला क्या है? अगला है राइटर। ओके, it is a free open source word processor program। it is a part of LibreOffice Suite। LibreOffice Suite का ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है।
इट इज अ फ्री ओपन सोर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि लिनक्स इज व्हाट, लिनक्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि लिनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मींस एनीवन कैन डेवलप इट एंड इट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। लिनक्स भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली जो राइटर, ये जो वर्ड प्रोसेसर है, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो free open source word program. This is also free open source word program. Okay, got it. So these all are what, these all are what types of word processor. Now I am going to show you a ppt जहाँ पे हम word processors के बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे. Okay, so this is what, this is a PPT. यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, here we are going to read about word processor. यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, we are going to read about the word processor. तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसका एक जिस्ट है. देखो व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग. अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर है एंड अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर देन एंड नाउ. देन में क्या था, अर्लियर हम टाइपराइटर यूज करते थे. पहले क्या यूज करते थे, पहले हम टाइपराइटर यूज करते थे. और अब हम क्या यूज करते हैं, अब हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते थे. ठीक है. नाउ व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग. सो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग. It is also known as a document preparation system. Word processing is also known as a document preparation system. It is a program where you can type and print document. What is it? It is a program जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने where you can type and print document, where you can type and print document. It has replaced the old typewriter. इसने क्या किया है, इसने old typewriter को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया. देखो पहले ऐसा टाइपराइटर होता था, यहाँ से हम पेजेस डालते थे. जब हम पेजेस इसमें डालते थे तो उसके बाद वो हमें क्या देता था, पेजेस डालने के बाद वो हमें अंदर की, फिर इस पे हम टाइप करते थे, इस पे हम ऐसे ऐसे टाइप करते थे और हमें वहीं पे वो जनरेट करते था. बट अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं. Now, application area of word processing software. Next is what? Application area. अगला क्या है भाई, application areas of word processing software. अब अगला है कहाँ कहाँ, what are the application area, what are the application areas of word processing software. अगला क्या है, application area of word processing software. Now, business में कहाँ है, legal copies, letterheads, letters, मेमोज एंड सर्कुलर. अब वर्ड प्रोसेसर का, वर्ड प्रोसेसिंग का यूज हम बिजनेस में कहाँ कहाँ करते हैं, बिजनेस में हम इसका यूज करते हैं लीगल कॉपीज बनाने के लिए, लेटर हेड्स के लिए, लेटर्स के लिए, मीमोज के लिए एंड सर्कुलर्स के लिए, है ना. इतनी सारी जगह हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, अगला क्या है भाई, लेट मी चेंज द कलर, कुछ ऐसा कलर. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, एजुकेशन. अब एजुकेशन में हम कहाँ यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर्स को, टू डेवलप वर्ड प्रोसेसिंग स्किल फ्रॉम वेरी बिगनिंग. अच्छा, एजुकेशन में कहाँ यूज है, बच्चों को, जैसे अभी आप लोग क्लास 4-5 में हो, अभी से हम आपको वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में सिखा रहे हैं. तो ये क्या है, टू डेवलप द वर्ड प्रोसेसिंग स्किल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अभी से जब हम सीखते हैं, अभी से जब हमें वर्ड पे वर्क करने आता है, सो व्हाट हैपन, जब हमें अभी से वर्ड पे वर्क करने आता है तो इट हेल्प अस टू गेन द स्किल. इसकी स्किल हमें सीखने में हेल्प होती है. नेक्स्ट इज होम. होम मीन्स व्हाट, dealing with assignment being completed at home or occasionally recreational, example maintaining diary. अब जैसे कुछ लोग का शौक होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है डायरीज पे लिखना, है ना, कुछ लोगों को अच्छा लगता है डायरीज पे लिखना. तो फॉर दैट ऑल्सो क्या होता है, उसके लिए भी क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं, जिन लोगों को डायरीज वगैरह मेंटेन करना अच्छा लगता है.
Okay, now after clipboard, let us see which is the next option. Now next option is font. अब font में जाके what we can do, font option में जाके we can change our font style, font को we can change. Okay, now after font, next is paragraph. If I want to change the paragraph, if I want to change the alignment, so I can use these things. Now next is the style. By clicking here, what I can do, I can change the style of my document. What I can do, मैं अपने document की style को I can change. रुको, let me show you. अच्छा मैम अभी आपको दिखाते हैं. Let me open the word. अच्छा suppose I type something. Wait a minute. Let me add a new tab and let me show you. Okay. Okay. So suppose I type something Taj Mahal. Yeah. और मैंने इसको सर्च किया. Now Taj Mahal Wikipedia. I'm clicking here. I'm doing it just to copy a paragraph. अब मैंने क्या किया? मैंने ताज महल को ऐसे करके मैंने क्या किया? कॉपी कर लिया. कंट्रोल प्लस. डैम इट. यस, मैंने क्या कर लिया? कंट्रोल प्लस सी मैंने किया. ओके. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल डू द कंट्रोल प्लस वी. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी मैंने वहां से कॉपी किया, आई हैव गॉट इट हियर. अब मैं क्या करूंगी? लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज फर्स्ट. तो फर्स्ट आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज. मैंने क्या किया? फॉन्ट साइज बढ़ा दिया. नाउ सी, अब मुझे इसकी स्टाइल चेंज करनी है. तो मैंने क्या किया? इसको सेलेक्ट किया. इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट इट. या सेलेक्ट किया, देन मैंने अभी देखो ये क्या, ए बी 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 सी सी नॉर्मल पे. मैंने क्या किया? अब इसको आई कैन चेंज इट. लेट मी ओपन इट मोर स्टाइल्स. नाउ सी, अब मैं क्या करूंगी? आई विल चेंज इट लाइक इंटेंस. यहाँ पे सी व्हाट हैपेंड, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है ना. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? पहले ये कैसा था और अभी ये कैसा हुआ. नाउ नेक्स्ट आई विल चेंज इट टू से. अच्छा रुको, फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट इट, कंट्रोल प्लस ए. and now I will do the styling. I will click on more style and see, I will click on emphasis. अब देखो, अब ये कुछ और डिफरेंट टाइप का दिख रहा है ना आपको. so this is how we change the style of our document. This is the way we can control, we can change the style of our document. Now let us move to back toward our PPT. Okay, paragraph done, style done. Now next is editing. What editing means? Editing means we can find, we can replace, or we can select the font. We can find, replace and select the font. अच्छा, next is insert tab. अब अगला टैब कौन सा है? insert tab. Now with the help of देखो, जो वर्ड है insert, वो वर्ड ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि what we have to do. जो वर्ड इंसर्ट है वही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें यहाँ पे करना क्या है. यहाँ पे with the help of insert, what we can do, we can insert different things. Let us see. First is pages. Now what I can do, I can click on यहाँ पे देखो pages में I am getting many options. Cover page, blank page, page breaks. So if I click on these options, what will happen? अगर इन सारे ऑप्शंस को मैं क्लिक करती हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा? कवर पेज. तो आई विल गेट द कवर पेज फॉर माय डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट के लिए आई विल गेट अ कवर पेज. Okay, now next is after page is tables. So I can click on table to insert tables in my document. Suppose मुझे timetable बनाना है और I want to draw anything. So what I can do, I can click on
tables to insert the document, to insert the table there. Okay. Now next we are having illustration. now अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या हो, मेरे डॉक्यूमेंट में क्या हो जाए, पिक्चर्स आ जाए, क्लिप आर्ट आ जाए, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, स्क्रीनशॉट्स, so that I can do by clicking on illustration, any one of the option. सपोज आई वांट कि मेरे पिक्चर में क्या आ जाए, आई वांट कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं इंडिया का मैप ले आऊँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन पिक्चर, आई विल डाउनलोड अ पिक्चर ऑफ मैप ऑफ इंडिया एंड आई विल इंसर्ट दैट इन माय डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज लिंक. अच्छा देखो, अभी मैंने जो विकीपीडिया ओपन किया, विकीपीडिया में देखो काफी ज्यादा आपको लिंक्स दिख रहे होंगे. Okay, next is header and footer. If I want, I can click on header and footer also. Header and footer maybe I can. Okay, header and footer maybe what I can do. Header and footer maybe when I will clear, I can put the header and footer and page number. जैसे आप लोगों की बुक जो होती है, ओके जैसे कि आप लोगों की बुक होती है जिसके नीचे क्या होता है, जिसके पेज पे आपको पेज नंबर दिखते हैं, तो दैट ऑल्सो वी कैन डू यूजिंग द हेडर एंड फुटर. नेक्स्ट इज टेक्स्ट and next is symbol. Okay, let us move ahead. Now next is page layout. Wait, let me show you this. Okay, wait. ओके नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट ऑप्शन, जिसके बारे में अभी अभी हमने पीपीटीज में पढ़ा. तो सी पेज, टेबल, पिक्चर्स, ऑल दीज थिंग्स आर हियर, है ना. इफ आई क्लिक ऑन टेबल, सी व्हाट हैपन. सपोज मुझे इतना बड़ा टेबल चाहिए, आई विल क्लिक लाइक दिस एंड देखो क्या हुआ, मुझे क्या मिल गया, टेबल मुझे मिल गया. नाउ हियर आई कैन टाइप एनीथिंग. सॉरी. Okay, got it. Now next option is picture. If I click on picture, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, choose picture. So if I want to add a picture, I will choose that picture from my phone. Now because I am having the latest version of Word, see what option they are giving me. Along with giving me, now see, along with giving me um, header and footer, they are also giving me emojis. So if I want to click on emojis, I can click on emojis also. I hope you guys love emojis. Okay, so if I click on here, see what I have got. I have got an emoji here. Got it. ओके, आई कैन क्लिक ऑन सिंबल. जैसे मान लो मुझे क्या चाहिए, रुपीज का सिंबल चाहिए, तो मैंने रुपीज का सिंबल लगा के 34 रुपीज 54 पैसे मैंने इस तरह से लिख दिया. तो बाय क्लिकिंग ऑन सिंबल आई कैन डू सो. ओके, नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर पीपीटी. अच्छा, the next option we are having is page layout option. So like all the other option, page layout option में भी क्या क्या है, अलग अलग चीजें. जैसे we are having themes here, page setup, page background, paragraph and arrange. Now page layout option. Page layout group contains the command most commonly associated with setting that would affect the entire page or document. Okay, kids. So now, kids, we have done up to page. We have done up to insert. Now in tomorrow's class, I will start from page layout only. Tomorrow's class, I will start from page layout option. Okay. वहाँ पे page layout option में I will explain you each one of these things. Okay. Till then, goodbye.